Hello friends, welcome to my channel English All New Academy. In this video, I have discussed about some useful tips and techniques to score more than 7 bands in writing skill in International English Language Testing System. मैंने एग्जाम्पल के साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं जो कि आपको समझने में बहुत ही सिंपल और इजी रहेंगे लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं. I have discussed such aspects with examples that will be really helpful in improving as well as enhancing your writing skill. So, I request you to watch the video till end. Before we begin, I request you to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest videos. Let's begin with writing skill. IELTS. The full form is International English Language Testing System. We know that the 4 skills are tested: listening, speaking, reading and writing. In writing, you get 2 writing tasks and both the writing tasks are very important, and in both the writing tasks you will see that some of these aspects are really considered to be very important when it comes to assessment of writing skill. तो चलिए हम समझते हैं कि राइटिंग स्किल के लिए कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं जो असेसमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ग्रामर. We know that grammar is one of the most important aspect of writing as well as speaking skill. Then you should have good vocabulary. You should be able to provide a variety of sentences. Organization of the content also is very important. Then whatever you have written, the content, that is the subject matter, that also should have relevance with the question. जो भी आपका कंटेंट है वो जो भी टॉपिक या क्वेश्चन दिया है उसके रेलेवेंट है या नहीं ये भी देखा जाएगा. देन स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस. सो these are all aspects which are considered to be very important while assessing writing skill. मैंने ये सारे एस्पेक्ट्स को एक एक करके लिया है इसीलिए मैंने राइटिंग स्किल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया so that it becomes easy for you to understand each and every aspect easily. Moreover, I have given some examples also so that you can easily understand. चलिए आज हम फोकस करेंगे ग्रामर पे और ग्रामर पे भी हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है जिसके बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने दी है. So in grammar, let us see which are the important aspects. Grammar includes correct usage of tenses. आपको tenses सही तरह से यूज करने हैं. Present, past, future. फिर parts of speech. Parts of speech में क्या क्या आएगा? That also we have discussed. Then active, passive voice. You have to properly use active or passive voice according to the requirement of the topic. This also I have explained in detail in many of my videos. Then there is subject verb agreement. Concord means agreement. According to the subject, you should use the verb. Modals, articles and determiners. These are some of the important topics that you should be very proficient in if you want to score more good bands in IELTS. ये सारे ही एस्पेक्ट्स मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं तो आप हर एक पार्ट को अच्छे से देखें. There are so many aspects but let us begin with grammar because grammar is one of the most basic aspects. अगर आपका ग्रामर सही है तभी आप आगे वोकैबुलरी अपनी एनरिच कर पाओगे और जो भी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है वो अच्छे से आप प्रोवाइड कर पाओगे. अगर ग्रामर में ही अगर गड़बड़ है, अगर ग्रामर आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कितनी भी अच्छी वोकैबुलरी हो, ग्रामेटिकल सेंटेंस इनकरेक्ट है तो इट इज नॉट हेल्पफुल इन स्कोरिंग मार्क्स. तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रामर में करेक्ट यूसेज ऑफ टेंसेस वी हैव सीन. These all aspects we have seen. Now let us try to understand what do we mean by
parts of speech. In correct usage of tenses, I hope that you all know about the tenses. आप सबको tenses के बारे में तो knowledge होगी ही. अगर फिर भी tenses को आपने और clear करना है और अच्छे से समझना है तो I have so many videos and one of my videos is about tenses in which I have clearly explained about all the tenses. तो आप उस वीडियो को भी देखें. Now we are going to take parts of speech. So let us try to understand which are the parts of speech. कौन कौन से होते हैं parts of speech? Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions and interjections. All these parts of speech, they play a very significant role in enhancing writing and speaking skills. Nouns, pronouns, we all are clear with this. Verbs also, they are action words. Adverbs and adjectives also I hope you are clear with. Now we begin with conjunctions. But even if you want to gain more understanding about all these parts of speech, you can watch my videos in which I have taken each and every part of speech in great detail. In this video, I am going to talk about conjunctions because conjunctions they play a very significant role in enhancing the writing skill. अगर आप conjunctions का सही तरह से यूज करते हो तो आपका जो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, the organization part of your content becomes very effective. So let's try to understand why conjunctions are considered to be one of the most important aspects in assessment of writing skills. Conjunctions are one of the most important aspects which are helpful in improving and enhancing both writing and speaking skill. अगर conjunctions आपने अच्छे से सीख लिए तो writing के साथ साथ आपकी speaking skill भी बहुत ही ज़्यादा improve हो जाएगी. Let's try to understand what do we mean by conjunctions. Conjunctions are joining words. इन्हें हम joining words भी कहते हैं because conjunctions are used to join words, phrases or sentences. Moreover, conjunctions are also very much helpful to link one idea with the other, which makes your organization effective. हम अगर सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे, कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे तो आपकी राइटिंग इफेक्टिव नहीं होगी. इस बात को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है जो अभी आप अच्छे से सीखेंगे. कंजंक्शंस बहुत जरूरी है क्योंकि कंजंक्शंस का यूज करके आप वैरायटी ऑफ सेंटेंस अपनी राइटिंग स्किल में ला सकते हो. वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मीन्स अलग अलग तरह के सेंटेंस. और अलग अलग तरह के सेंटेंस हमें क्यों यूज करने हैं? ताकि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही मोनोटोनस या डिसइंटरेस्टिंग ना बन जाए, अनइंटरेस्टिंग ना बन जाए. राइटिंग स्किल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. काफी बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि कंजंक्शंस तो बहुत इजी हैं, लेकिन कंजंक्शंस के फंक्शंस भी हमें आने चाहिए. हम हर एक कंजंक्शन को अलग अलग तरह से यूज करते हैं. हर एक कंजंक्शन का एक अपना फंक्शन है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए. Let us see some of the conjunctions. These are some of the important conjunctions and we can see that here some of the conjunctions are even titled as connectives and some of the conjunctions are also known as discourse markers. आपने ये टर्म सुने होंगे. तो चलिए हम एक एक करके conjunctions को भी समझेंगे और उनकी functions को भी along with their usage. Conjunctions क्या है? तो joining words. तो हम sentences को join कर सकते हैं. कैसे words use करके? Words like though, although, however, moreover, nonetheless, nevertheless, whereas, otherwise, while, therefore, unless, till, until, lest, whenever, wherever, whoever, whatever, whichever, who, whose, whom, why, when, which, what, how, where, yet, because, but, since, and, not only but also. ये not only
बट ऑल्सो। इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जो हमेशा पैर में ही होते हैं। बोथ एंड, वेदर और, इधर और, neither nor, as, so that, so as, hardly when, scarcely when, no sooner than, and there are such other conjunctions also which are very helpful in enhancing your writing and speaking skill. इनमें से ये कुछ conjunction हैं जैसे कि however, moreover। ये conjunctions हम एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करने के लिए भी यूज करते हैं। इनका यूसेज भी हम देखेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद द वर्ड्स विच आर नोन एज कंजंक्शंस। अब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर एक कंजंक्शन का क्या फंक्शन है और इस कंजंक्शन को हमें कब यूज करना है, कंजंक्शंस को हमें क्यों यूज करना है, why should we use different conjunctions, how conjunctions are helpful in enhancing writing as well as speaking skill। तो चलिए देखते हैं। Repetition of same conjunctions mars your writing skill because the writing task that consists of repetition of same conjunctions reveals the poor writing skills। इसमें क्या समझना है हमें कि अगर हमें कोई टास्क मिला है राइटिंग का, जैसे लेटर राइटिंग है या ऐसे है, उसमें अगर हम एक ही तरह के कंजंक्शन, जैसे कि हम ज्यादातर एवरीडे कम्युनिकेशन में बट का यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं, बिकॉज का, एंड का, तो ये 4-5 कंजंक्शन हम एवरीडे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं और राइटिंग स्किल में भी ये कंजंक्शन बार बार यूज हो जाते हैं, जिससे कि अपनी राइटिंग स्किल जो है वो पुअर हो जाती है, अच्छी नहीं होती है वो राइटिंग स्किल। पढ़ने वाले को उसमें मजा नहीं आता है क्योंकि बार बार आप सेम वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो, तो इससे लगता है कि आपके पास जो इंग्लिश की नॉलेज है, जो कंजंक्शंस और ग्रामर की नॉलेज है, वो बहुत ही लिमिटेड है। मार का मतलब होता है कि बुरा प्रभाव पड़ना। तो इसीलिए हमें किसी भी पैराग्राफ में 2 बार से ज्यादा सेम कंजंक्शन को यूज नहीं करना चाहिए। It is necessary to use different conjunctions to provide a variety of sentences which makes the writing task interesting as well as effective। अगर हम अलग अलग तरह के कंजंक्शंस यूज करते हैं तो उससे हम अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। A variety of sentences can be written, और अगर आप अलग अलग कंजंक्शन यूज करके आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन इफेक्टिवली लिखेंगे, उससे आपका राइटिंग टास्क जो है वो इंटरेस्टिंग होगा और राइटिंग स्किल भी इनहेंस होगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग मोर बैंड्स। Some of the conjunctions like therefore, moreover, however, and such conjunctions are also helpful in linking one idea with the other, which is considered to be an important aspect of organization of the content। जब भी आप content को organize करते हो, कोई भी आप सब्जेक्ट मैटर लिखते हो, तो उसमें हमेशा याद रखना है कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से हमें लिंक करना है और दूसरे पैराग्राफ को थर्ड पैराग्राफ से। तो हमें यहाँ therefore, moreover, however ऐसे कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। इन लिंकिंग वर्ड्स को अगर हम यूज करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। हम हर एक कंजंक्शन का यूसेज देखेंगे। नाउ यू शुड रिमेंबर दीज टिप्स व्हेन यू राइट समथिंग। जब आप राइटिंग स्किल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर इनमें हमने कोई गलती कर दी तो हमारे बैंड्स कम हो जाते हैं। तो ज्यादा बैंड्स के लिए रिमेंबर दिस टिप्स। इन अ पैराग्राफ ट्राई टू यूज डिफरेंट कंजंक्शंस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम कंजंक्शन। जैसा कि मैंने बताया एवरीडे कम्युनिकेशन में आप एंड का, बट का, बिकॉज का, ये सिंपल वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। तो लिखते वक्त क्या होता है, आपको ध्यान नहीं रहता है और आप बार बार उन्हीं कंजंक्शंस को यूज करते हो। तो उससे क्या होगा, रिपीटिंग द सेम कंजंक्शन shows that you have poor writing skills। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेम कंजंक्शन को बार बार एक ही पैराग्राफ में हमें यूज नहीं करना है। इन द सेम पैराग्राफ अवॉइड यूजिंग द सेम कंजंक्शन मोर देन 2 टाइम्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कंजंक्शन मुझे दोबारा से यूज करना ही पड़ेगा,
तो आपको दूसरा कोई कंजंक्शन उसका जो सिनोनिम है वो उस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि किसी भी एक कंजंक्शन को 2 बार से ज्यादा यूज ना करें। इसके लिए आपको कंजंक्शंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और हर एक कंजंक्शन का आपको फंक्शन समझना है, क्योंकि अपने पास इतने सारे कंजंक्शंस हैं कि एक कंजंक्शन के रिलेटेड हमारे पास 3 या 4 कंजंक्शंस और होते हैं। सो देयर इज नो नीड टू यूज सेम कंजंक्शन अगेन एंड अगेन। For example, if you want to use conjunctions that show contrast, then try using different conjunctions, because the use of different conjunctions shows your language proficiency. देखिए हमें बेनिफिट क्या है, अगर हम अलग अलग कंजंक्शन यूज करेंगे तो एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को ही मेजर करता है, इसीलिए conjunctions are really helpful. Instead of using but or yet repeatedly, जैसा कि but या yet यह आप एवरीडे कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज करते हो, तो बार बार इसे हम पैराग्राफ में रिपीट करेंगे तो अपना कम्युनिकेशन, अपना राइटिंग स्किल इफेक्टिव नहीं होगा। तो but या yet की जगह हमें और भी कंजंक्शंस यूज करने हैं, जैसे कि although, though, still। अब देखिए but या yet की जगह पर अपने पास 3 और कंजंक्शन है और इनका मीनिंग सिमिलर है। That is, all these conjunctions are used to show the contrast. Conjunctions of contrast या conjunctions that show alternative, ये सारे conjunctions हम उनके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और हर एक कंजंक्शन का क्या फंक्शन है। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने ऐसा कोई पैराग्राफ लिखा है जिसमें कंजंक्शन नहीं है या आप एंड या बट का यूज करते हो, तो वो पैराग्राफ कैसा लगेगा, और जिस पैराग्राफ में आपने बहुत ही अच्छे कंजंक्शन यूज किए हैं तो वो पैराग्राफ कैसा लगेगा। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है where I haven't used conjunctions, और दूसरा पैराग्राफ है जहां पर मैंने कंजंक्शंस को इफेक्टिवली यूज किया है, so that you can yourself see the difference। आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा। चलिए ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। शिवानी was an intelligent girl. She was a diligent girl. She worked hard. She could not score good marks in the midterm examination. She was upset to see the result. She did not lose hope. She decided to work harder. She identified the areas to be improved. She was firm in determination. She was an optimist. She never lost hope in life. In the final examination, she scored full marks in all the subjects. अब इस पैराग्राफ में देखिए तो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, पंक्चुएशंस आर वेल यूज्ड, बट यहाँ पर कंजंक्शंस का यूज नहीं हुआ है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे जहां पर कंजंक्शंस का इफेक्टिवली यूज हुआ है। तो चलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। शिवानी वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ डिलिजेंट गर्ल। तो दीज टू sentences we have seen how I have connected or joined with these two conjunctions। यहाँ पर आप and का भी यूज कर सकते हो। अगर हम ऐसे कहें शिवानी was an intelligent and diligent girl, तो वो भी एक कंजंक्शन हुआ, लेकिन and की जगह पर अगर मैंने not only but also यूज किया तो it seems to be more effective। तो and की जगह पर हम not only but also का भी यूज कर सकते हैं। Although she worked hard, she could not score good marks in the midterm examination। यहाँ पर देखिए she worked hard, she could not score good marks, ये भी ग्रामेटिकली तो राइट है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कंजंक्शन although को बिगनिंग में यूज कर लिया है and I have combined two sentences, दो sentences को हमने although के यूज से ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव हो गया है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि द एग्जामिनर विल बी इंटरेस्टेड टू रीड बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया है, यहाँ पर ऑल्दो यूज किया है, तो ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम फ्रेम कर रहे हैं और यहाँ पर जो यूज किए हैं ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। शी वॉज अपसेट व्हेन she saw her result, but she did not lose hope and decided to work harder। तो यहाँ पर देखिए she was upset to see the result, she did not lose hope।
Here also grammatically nothing is wrong, but here if you see, I have joined 4 sentences using conjunctions like when, but, and. तो यहाँ पर आप देखिए कि कंजंक्शन से ये पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप है। यू हैव अ गुड होल्ड ऑन लैंग्वेज। She identified the areas which needed to be improved. यहाँ पर हमने conjunction which का use किया है। She was a person who was firm in determination. Here I have used conjunction who. Moreover, she was an optimist. So, she never lost hope in life. और firm in determination मतलब दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ, moreover मतलब दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ वो ऑप्टिमिस्ट भी है, मतलब आशावादी भी है, पॉजिटिव थिंकर है। इन द फाइनल एग्जामिनेशन शी स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस यूज किए एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आपको खुद को पता चल जाएगा कि कंजंक्शंस को यूज करके पैराग्राफ कितना इफेक्टिवली आप लिख सकते हैं। ये सारे ही कंजंक्शंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और उनके साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो आप मेरे सारे ही वीडियोस देखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना हो जाए इसीलिए मैंने सारे वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंजंक्शन लिए हैं। और अलग अलग कंजंक्शन लेने का एक ये भी रीज़न है कि आप अलग अलग कंजंक्शन को उनके फंक्शंस के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से याद भी रख पाएंगे। अगर एक साथ ही हम 20 to 25 कंजंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको भी याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम कुछ कंजंक्शंस लेते हैं जिनके फंक्शंस भी आपको समझाऊंगी और साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेट्स बिगिन विद कंजंक्शंस विच आर यूज्ड टू शो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। बट, येट, दो, ऑल्दो, ये सारे ही कंजंक्शन ऐसे हैं जिन्हें हमें जब कॉन्ट्रास्ट की कुछ बात करनी है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा कोई दो सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है, तब हम इन कंजंक्शन में से किसी एक कंजंक्शन का यूज करेंगे। और सपोज एक पैराग्राफ में आपको 2 या 3 बार कुछ कॉन्ट्रास्टिंग यूज करना है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो हम बट को या येट को बार बार यूज नहीं करेंगे। हम एक बार दो को यूज कर सकते हैं, फिर ऑल्दो को यूज कर सकते हैं, येट को यूज कर सकते हैं, स्टिल को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद बट। बट का मतलब होता है लेकिन। इवान रैन फास्ट बट कुडंट कैच द बस। इवान तेज दौड़ा लेकिन बस को नहीं पकड़ पाया। येट का यूज देखते हैं। ब्रिजेश स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास येट नोबडी अप्रिशिएटेड हिम। ब्रिजेश उसकी क्लास में फर्स्ट आया, फिर भी किसी ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। तो यहाँ पर फिर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन अ वेरी शार्प कॉन्ट्रास्ट, बट येट को देखेंगे तो ये शार्प कॉन्ट्रास्ट है कि अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसको सब अप्रिशिएट करेंगे, उसकी सब लोग तारीफ करेंगे, लेकिन ये शार्प कॉन्ट्रास्ट है इसीलिए हमने यहाँ पर येट का यूज किया है। फिर भी दो एंड ऑल्दो दे ऑल्सो मीन वन एंड द सेम थिंग, लेकिन हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कंजंक्शन यूज करेंगे टू शो कॉन्ट्रास्ट, देन इट विल बिकम मोर इफेक्टिव। दो ब्रिजेश स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास नोबडी अप्रिशिएटेड हिम। अब देखिए इसी स्टेटमेंट को मैंने येट लेकर यूज किया था और इसी स्टेटमेंट को हम दो लिखकर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये भी दो का मीनिंग है। फिर भी ब्रिजेश फर्स्ट आया, फिर भी किसी ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पर दो is used in this formation. Then although also means one and the same thing like though. Although का भी मतलब है फिर भी। Although Shivani submitted her assignment on time, the teacher scolded her. Although आप यहाँ पर ब्रिजेश के लिए भी although भी यूज कर सकते हैं। I have given some examples to make you understand clearly. अब क्या कह रहा है ये कि शिवानी ने उसका असाइनमेंट टाइम पे सबमिट किया, फिर भी टीचर ने उसे डांट दिया। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई सबमिट करता है असाइनमेंट टाइम पे तो टीचर उसे डांटेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, शार्प कॉन्ट्रास्ट, मतलब ऑपोजिट हो गया कि इसीलिए हमने
although का यूज किया। यहाँ पर आप दो का भी यूज कर सकते हो और yet का भी यूज कर सकते हैं। yet का यूज कैसे करेंगे? शिवानी सबमिटेड हर असाइनमेंट ऑन टाइम, yet the teacher scolded her. So we have seen how we can use different conjunctions with similar meanings. Let's take some conjunctions that indicate cause or reason. Because reason है Shama was crying because your sister scolded her. श्यामा रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि आपकी सिस्टर ने उसे डांट दिया। अब इसी सेंटेंस को आप अगर इस तरह से लिखेंगे, श्यामा was crying, your sister scolded her, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हमने ये दोनों सेंटेंस ज्वाइन कर दिए तो ये अपना सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच इज मोर इफेक्टिव कंपेयर्ड टू सिंपल सेंटेंस। सिंस का देखते हैं, ये भी रीजन के लिए यूज होता है। सिंस इट वॉज रेनिंग हैविली, अदिति कुड नॉट गो टू हर ऑफिस। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी इसीलिए अदिति उसके ऑफिस नहीं जा पाई। Here also I have given example of simple sentence so that you can make out the difference between the sentence which has used the conjunction and the sentence which is a simple sentence. Let us also try to understand usage of as. Anushi will reach office on time as she comes by car. अनुषी कार से आती है इसीलिए ऑफिस टाइम से पहुंच जाएगी। I hope you have understood the function of because, since and as. Let's take some conjunctions which are used to offer a choice or alternative. दो चीजों के बीच में से एक चीज हमें चूज करनी है, तब हम कौन कौन से कंजंक्शन यूज करेंगे? अदरवाइज, एल्स और। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी हैं और भी कंजंक्शंस जो कि मैंने दूसरे पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। Let us see otherwise. Submit your project on time. Otherwise, you will not get any marks. अपना प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करो, नहीं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अदरवाइज मतलब नहीं तो। The roof should be repaired. Otherwise, rats will enter into the room. Else का मीनिंग देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। Reach station in time. Else, you will miss the train. स्टेशन टाइम से पहुंच जाना, नहीं तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ए और बी। जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन में चॉइस मिलती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ द कंजंक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिन्हें मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ में बहुत से एग्जाम्पल भी दिए हैं। आप जब भी कोई राइटिंग टास्क लेते हैं तो कोशिश करें कि जो भी कंजंक्शन आप सीखते हैं उन्हें कॉन्शियसली, उन्हें सोच सोच कर आपको यूज करना है और उनके फंक्शन आपको क्लियरली समझने हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और आप सबसे पहले उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। You can share the link with your friends so that they also can learn easily. Watch all the parts because I have discussed about all the skills. I assure you that if you will understand all the tips and techniques and if you will start implementing the tips and techniques as I have explained, then you will score more than 7 bands and many of my students, they have scored more than 7.5. Thank you for watching the video.